اور قدوس نام میں آپ سب کی خدمت میں اسلام۔ شکر گزاری خداوند کی جو بڑا وفادار خدا ہے اور اپنے لوگوں سے ہر روز پیار کرتا ہے۔ آمین۔ آپ کے پاس بائبل ہے، میرے ساتھ نکال سکتے ہیں مقدس لوکا کا انجیلی بیان، 19واں باب ہے، اس کی 10ویں آیت۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان 19واں باب 10ویں آیت، بڑی فیمس آیت ہے، اکثر یہ لوگوں کو زبانی بھی یاد ہے۔ بائبل ہے تو ضرور نکالیے، یا موبائل میں ہے نکال سکتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ شکریہ جی، خداوند کے کلام کے سبب سے آج ہمیں بڑی برکت ملے۔ آمین آمین۔ آج ہم گفتگو کریں گے اس موضوع پر کہ خدا ڈھونڈتا ہے۔ خدا، میرے ساتھ رہنا ہے، خدا ڈھونڈتا ہے، اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ خدا کن کن کو ڈھونڈتا ہے اور کیوں ڈھونڈتا ہے، ڈھونڈنے کی وجہ کیا ہے، اور کس کس کو ڈھونڈتا ہے یا کن کن کو خدا ڈھونڈتا ہے۔ تو ٹاپک کیا ہے؟ میرے ساتھ رہنا ہے، خدا ڈھونڈنے کا کام جو ہے خدا نے دنیا کے آغاز ہی سے کیا، دنیا کے شروع ہی سے خدا نے یہ کام کیا، اور آج تک یہ کام جاری ہے۔ آمین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام خدا نے دنیا کے آغاز سے شروع کیا اور یہ جاری رہے گا۔ جیسے دور آگے آئے گا تب بھی کیا رہے گا؟ جاری رہے گا۔ اور یہ جو ورس آپ نے پڑھی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ یسوع مسیح کے دور کی ہے، یسوع مسیح کے زمانے کی ہے، اور پوری یہ کہانی آپ اس سے آگاہ ہے، واقف ہے کہ یہاں پر یسوع مسیح ایک گناہگار شخص کے گھر میں جاتے ہیں، تب یہ مسیح نے آخر پر بولا ہے، کہانی کے آخر پر۔ آمین۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے کہ خدا نمبر 1 گناہگاروں کو ڈھونڈتا ہے۔ کس کو؟ اور ہمارے نزدیک تو فرق سوچ ہوتی ہے، کچھ ایسے خاندان ہوتے ہیں یا کچھ ایسی زندگیاں ہوتے ہیں، سمجھ لو کہ انہوں نے گناہ چ ڈگریاں حاصل کی تیاں، کادج میرے ساتھ رہنا ہے، گناہ میں وہ بڑے نامینیٹ ہیں، گناہ میں وہ بڑے نامور لوگ ہوتے ہیں۔ آپ اپنے خیالوں میں یا اپنی لینگویج میں ان کو کہہ سکتے ہیں وڈے گناہگار، کیونکہ ہمارے نزدیک چھوٹے گناہگار اور تو جو خدا ہے وہ بڑے بڑے جو گناہگار ہیں یا گناہ میں نامور لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو بھی خدا پہلے کیا کرتا ہے؟ تلاش کرتا ہے۔ سمجھ لو جنہیں ڈگری حاصل کی تھی ہے گناہ، خدا ان کو کیا کرتا ہے؟ تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے۔ اس کے لیے زکئی کی کہانی، اور زکئی محصول لینے والوں کا کیا تھا؟ ہیڈ، سردار۔ اور پتہ یہودی لوگ محصول لینے والوں کو کیا سمجھتے تھے؟ گناہگار۔ کیا سمجھتے تھے؟ کیونکہ یہ لوگ حکومت کی طرف سے تھے، اور یہودی لوگ جو ہے وہ رومی حکومت کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ محصول لینے والے لوگ حکومت کے لیے پیسہ کلیکٹ کرتے تھے، اور یہودی لوگ ان کو گناہگار سمجھتے تھے۔ تو یہاں پر زکئی جو گناہ کے حوالے سے ایک نامور شخص ہے، جب اس کو ڈھونڈا گیا ہے، جب اس کو تلاش کیا گیا ہے،
تو यीशु मसीह जो है ज़कई के घर में ये बात कह रहे हैं कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने, और तो किसको ढूंढा गया? एक गुनाहगार शख्स को, ज़कई को। हमारे नजदीक कई मर्तबा जत्थों के जत्थे ढूंढे जाएं तो यह बड़ी बात है। मीटिंग्स के अंदर कोई ज्यादा से ज्यादा लोग खुदा को कबूल करें या लोग बच जाएं, तब यह बड़ी बात है। लेकिन जब खुदावंद ढूंढता है तो वो एक एक शख्स के लिए भी यह काम करता है। लूका का अंजलि बयान उसका 15वां बाब, वहां 3 तमासील हैं। अगर आपने इनको पढ़ा है, कितनी है? 3 तमासील हैं, और 3 तमासील का तल्लुक ढूंढने से है। एक भेड़ वाली, और एक सिक्के वाली, दिरहम वाली, और एक मुसरे बेटे वाली। उसी चैप्टर के अंदर ये कितनी तमासील है, और तीनों का तल्लुक किससे है? ढूंढने से। और मैं बिल्कुल कलाम को सादा रखूंगा, आज इब्रानी यूनानी की तरफ मुझे नहीं जाना, बिल्कुल सिंपल बातें आगे लेकर चलेंगे। तो ये 3 तमासील जो हैं, ये बताती हैं पहली बात कि खुदा के नजदीक किसी एक शख्स की भी कदर है। खुदा किसी एक को भी ढूंढता है। हमारी मीटिंग में तो ये हो, कोई 100 बंदा तौबा करे, 50 बंदा तौबा करे, तो हम कहते हैं मीटिंग बड़ी टोरी हुई है, कि उसे 100 बंदे ने की है, ते जे मीटिंग एक बंदा ही तौबा करे तो फिर कोई स्वाद नहीं आया यार, बस एक ही बंदे ने खुदा नू कबूल किया है। भाई भेड़ एक ही खोई थी, 99 घर में थी। तेरा खुदावन तमसील के अंदर यह बताता है, एक को ढूंढने के लिए वो निकला। तो ये एक को ढूंढना जो निकला है, ये ढूंढने का पैशन है। क्या है ढूंढने का? ते साडे अंदर पैशन कदों हुंदा है? वाह सारे गवाचे हो, है ना? तो ये कितनी भेड़ें गुम हुई थी, निकला या नहीं? तो याद रखे, तेरे खुदावंद के अंदर ढूंढने का क्या है? पैशन है। आमीन। उर्दू में इसको क्या कहेंगे? ढूंढने का जज्बा है, ढूंढने का बोझ है। पहली बात, ये तीनों तमासील ये बताती, वो घर से निकला ढूंढने के लिए, और वो मारा मारा उधर फिर रहा है। कई लोगों ने इसको कहानियों की सूरत में भी बयान किया है, डेफिनेशन करते हुए। कई लोगों ने कहा उसने जाकर वहां भेड़ की आवाज भी निकाली। कई लोगों ने कहा उसने वो भेड़ का ओढ़ा लिबास। तो ये जितनी भी तफासीर या बातें आपके सामने आती हैं, ये उस बोझ को पेश करती है जो वो ढूंढने के लिए रखता है। आमीन। ऐसे बस रस्मी नहीं है। कई मर्तबा हम बच्चों से कहते हैं कोई चीज खो जाए या तो इधर वेख यार मिल नहीं रही, तो वो रस्मी करेंगे बस। ये आपने सुना है, बड़ी फेमस है जरबल मिसल, भीगी बिल्ली बताना। सुना है किसी ने? ये बड़ी फेमस है, सुने? इसका क्या मतलब? इसका मतलब बहाना लगाना। बाप ने बेटे से कहा जाओ देखो बारिश थम गई है, तो वो बाहर तो नहीं गया देखे कि बारिश थम गई है या हो रही है। बरामदे में बैठी थी बिल्ली, उसने उसको देखा, यहां से ये चली है, जरबल मिसली यहां से चली। उसने बरामदे में बस देखा बिल्ली बैठी है और वो भीगी है, तो यहां से चली कि उसने कहा हाँ बारिश हो रही है। बाहर नहीं गया, अंदर ही भीगी बिल्ली बताना। लेकिन जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर पूरा बोझ है। बशरी लिहाज से ऐसे है
कि ये ढूंढने की खातिर अपनी नींद जाया कर सकता है, ढूंढने की खातिर अपना आराम वेस्ट कर सकता है। ये पैशन है। और मैं आपको बताना चाहता हूं ढूंढता क्यों है। इसके कई जवाब हो सकते हैं क्यों ढूंढता है। पहली बात, आप बहुत कीमती हैं इसलिए ढूंढता है। सच्ची गल करिया जे कोई चीज ਤੁਹਾਡੀ थकी जी गवाच जाए, थकी ਨੂੰ अंडरस्टैंड करते जी है, मामूली आम चीज, कोई थकी जी चीज गवाच जाए ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ वक्त नहीं जाया करना, वो चल छो पर आई यार ठीक, क्या ख्याल है, कोई बात नहीं। एक बहन की अंगूठी गोल्ड की वॉशरूम में गिर गई और नजर आ रही सामने, हाँ जी, तो ना उसने शापर ढूंढा और ना कुछ तलाश किया, सीधा ही हाथ। हाँ? क्यों? कीमती है। मेरा अपना शख्सी गवाही, मेरा मोबाइल गिर गया, ऐसे मैं विजिट कर रहा था, तो मैंने विजिट करने के बाद घर से निकला और कोट के अंदरली पॉकेट में ये डाला, तो पॉकेट में नहीं डाला, नीचे गिरा, नीचे गिर के इसने जंप लिया और नाली में, तो मैंने भी उसको दस्ती निकाल लिया। हालांकि कोई मुझे कहे हाथ डालो तो डालूंगा। तो असल बात यह है कि इसलिए वो ढूंढता है क्योंकि जो खो चुके हैं, जो दूर चले गए हैं, जो गुम हो गए हैं, वो बहुत कीमती है। और मैं चलते चलते ये गवाही देना चाहता हूं, रात को भी अभी भी मुझे पता ही नहीं होता मैंने क्या सुनाना है। शरोज मुझे पूछ रहे थे सर जी की सुनाना है, मैं कहा पता नहीं। अजीम कहते टाइटल बताओ क्या सुनाना है, मैंने पता नहीं। और अभी एक ही गीत रहता था, जब मुझे कलाम मिला मैंने पारी साहब को बोला उस्ताद जी कलाम मिल गया, तो उस्ताद जी इस तरह ही रात को भी ऐसे ही। उधर हैदराबाद में एक पहले दिन मीटिंग, तो मुझे वो स्टेज पर बुलाने वाले हैं कलाम सुनाने के लिए, अभी तक मुझे नहीं पता क्या सुनाना है। मैं अपना कान खुदा को देता हूं, खुदा क्या चाहता है वो बोलूं, और जब खुदा इंडिकेटर देते हैं ना कि ये बोल रहे हैं, फिर मैं तो शादमानी से और ताकत से भर जाता हूं। आमीन। वापस आइए, खुदा क्यों ढूंढता है? सुनिए, कभी कभी जो रास्तबाज है, जो खुदा परस्त है, जो चेंज हो गए हैं, वो अपने आप को ये समझते हैं कि हम कीमती हैं, गुनाहगार कीमती नहीं। भाई जितना खून तेरे लिए बहाया गया, जितने कोड़े तेरे लिए खाए गए, जितना वो तेरे लिए रुसवा हुआ, उतना ही शरीर के लिए। बस फर्क ये है, तुझे उसकी कीमत की समझ आ गई है और शरीर को अभी तक नहीं आई। फर्क यही है, इन्वेस्टमेंट उसके लिए भी उतनी है और तेरे लिए भी उतनी है। खुदा इसलिए ढूंढता है, पहली बात कि हम क्या है? कीमती, कीमती हैं। दूसरी बात इसलिए ढूंढता है कि खुदा को हमसे मोहब्बत है। आमीन। खुदा को हमसे क्या है? मोहब्बत है। ते मोहब्बत ते फिर तुहानू पता है सारा कुछ ही करवा देंदी है, बहुतियां तजर्बा इस गल का। इसलिए ढूंढता है कि वो हमसे क्या करता है? मोहब्बत। आमीन। इसलिए वो ढूंढता है। और बड़ा फेमस वो हम गीत गाते हैं, किधर गए भाई? दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल, आजा आजा घर लौट आ, लौट आ।
मेरे बेटे मेरे पास वापस आ जा, मैंने तेरा फिदिया दिया है। भाई कीमत सबके लिए चुकाई गई है। हम सब तजर्बा रखते हैं। आपको कोई बवक्ते जरूरत एक ड्रिप ब्लड की दे दे, तुसी ते उन्होंने सारी जिंदगी नहीं भूलना। क्या ख्याल है? ते जिन्हें सारियां ही दे दी ने, सारा ही खून जिसने दे दिए। और ये मोहब्बत में ऐसा होता है। आमीन। किसमें? जी मोहब्बत में। तो खुदा जो है पहली बात इसलिए ढूंढता है कि हम कीमती हैं। दूसरी बात इसलिए ढूंढता है, हमसे मोहब्बत करता है। आमीन। और ये तीनों कहानी स्टोरी आप पढ़ेंगे, आपको पैशन दिखाई देगा ढूंढने का। वो सिक्का जो खो गया था, कितने सिक्के थे? 10। खोए कितने हैं? 1। कितनी भेड़ें थी? तो वो भी 10% है और यहां भी 10% है। एक सिक्का खोया, सारे नहीं खो गए। और उसने क्या किया है? हाँ जी, और उसने क्या किया था? चिराग जलाया। क्या किया? और झाड़ू भी दिया। तो ये चिराग जलाना और झाड़ू देना, ये उसके ढूंढने के पैशन को पेश करता है। तो फिर मिला है या नहीं? तीसरी यहां पर है मुसरफ बेटे की। और अगरचे आपको ये बाप नजर नहीं आता वहां पहुंचता हुआ जहां मुसरफ था, लेकिन ये जरूर दिखाई देता है कि वो उसका इंतजार कर रहा था, उसका वेट कर रहा था। और जब वो वापस गया है तो बाप खड़ा है। आमीन। तो ये ढूंढने की उसके पैशन को पेश करता है। पहला हमने सीखा है खुदा किनको ढूंढता है? गुनाहगारों को। किसको? और ये भी देखा क्यों ढूंढता है। दूसरा पॉइंट है खुदा परस्तारों को ढूंढता है। निकालिए मेरे साथ यूहन्ना रसूल का अंजलि बयान, उसका 4था बाब, उसकी आयत नंबर 23 है। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, मगर वह वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को परस्तिश करने का तजर्बा है? एक ऐसी परस्तिश है जो हम सुनते हैं और करते हैं। अभी मैं जो बात करूंगा, आप ज्यादा लोगों को इस बात का तजर्बा होगा। एक परस्तिश वो है जो हम सुनते हैं और करते हैं। जो ही उधर थाप चलती है और फिर वो हम शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक ऐसी परस्तिश है, कोई कहे या ना कहे, ना कोई वो लिखा हुआ गीत होता है, ना कोई वो कुछ होता है, बस हम लगे रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। ना अल्फाज है, ना को हमारे साथ है, और शायद 2 घंटे गुजर जाएं, 3 गुजर जाएं। कितने लोगों को ये तजर्बा है? नू 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 कर दे रहे हैं। कितने लोगों को तजर्बा है? असल में हकीकी परस्तिश है ये, क्योंकि आप का जब कनेक्शन हो जाता है ना, उस वक्त आप ऐसा करते हैं। आमीन। फिर कहने की जरूरत नहीं, गाओ। अदरवाइज जब कहा जाता है तब लोग गाते हैं, नहीं तो उसके बाद ऐसे ही आता है। लीड करने वाला कहेगा गाओ, तब वो रब खुदा बादशाह है, वो बस अगो खत्म। फिर लीड करने वाला कहेगा, फिर गाते हैं। लेकिन जिस परस्तार की बात यहां पर है, उसके अंदर से ये चलता है और उसके अंदर से ये बात है,
اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں گانے کا تعلق خاص طور پر شادمانی کے ساتھ بائبل کے مطابق خوش ہو تو، اور جب آپ اپنے خدا میں خوش ہوتے ہیں، اپنے خدا میں مگن ہوتے ہیں، تب یہ چلتا ہے. اور یہ ایسا گیت ہے جس کے لیے آپ نے پہلے سے کوئی تیاری نہیں کی، جس کے لیے آپ نے پہلے سے سازوں کو سیٹ نہیں کیا، جس کے لیے پہلے سے آپ نے کلاس کو دے کر کھڑے نہیں ہوئے جی ٹائم ہو گیا ہم پرستیدہ چلو بھائی. یہ ایسی ہے ٹائم ہو یا نہ ہو آپ لگے رہتے ہیں اور مگن رہتے ہیں. یہ ایسا خود ساختہ آپ کی روح کا نغمہ ہو سکتا ہے، اور ایسی سینس ہے پرستاروں کے اندر. آمین. تو کیسے پرستار ڈھونڈتا ہے خدا؟ ہے روح اور سچائی سے ان کو ڈھونڈتا ہے، تاکہ جب وہ پرستش کریں تو پرستش کرنے والے بھی سیراب ہو. جب وہ پرستش کریں تو پھر دوسرا کون سیراب ہو؟ بھائی خدا. کہاں پر یہ سرمن تھا؟ بھائی جب ہم دعا کرتے ہیں، دعا میں لطف اندوز ہوتے ہیں یا نہیں؟ جدو اٹھو نو دل نہیں کرتا دعا چو، دل کرتا اور لمحہ کم ہو جائے. لطف اندوز ہوتے ہیں یا نہیں؟ میرا خیال یہ تھا پادری شفقت ساگر کے ادھر، تو ہم انجوائے کرتے ہیں دعا میں، لطف اندوز ہوتے ہیں، اور یہ تیرا خدا بھی آمین لطف اندوز ہوتا ہے، انجوائے کرتا ہے تیری پرستش سے. لیکن کیسے؟ جب روح اور سچائی سے پرستش کرتے ہیں لوگ. اور کن کو خدا ڈھونڈتا ہے؟ پرستاروں کو. کن کو؟ میرے ساتھ نکالیں زبور 89 20ویں آیت، زبور 89 آیت نمبر 20. ایک ہی آیت ہم پڑھیں گے. میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا. اس کا مطلب ہے خدا اس کو ڈھونڈ رہا تھا، مل گیا. مل گیا خدا کو. کون؟ پرستار، روح اور سچائی سے پرستش کرنے والا. کون مل گیا خدا کو؟ سازوں کو آزاد کرنے والا. کون مل گیا؟ راگوں کو آزاد کرنے والا. آمین. اور خدا کے لیے گانے والا اور خدا کے لیے لکھنے والا. بے شک یہ الہام ہے، اس میں شک والی بات نہیں. ہم تو داؤد کو گاتے ہیں. کس کو گاتے ہیں؟ تو یہ سارے کے سارے گیت اس کی روح کے اندر سے نکلتے تھے. آمین. اس میں شک نہیں کہ یہ الہام نہیں، الہام ہے. جب اس کے اندر سے یہ سارے گیت نکلتے تھے، وہ ان کے لیے ٹیون بناتا تھا، وہ ان کو گاتا تھا، وہ ناچتا تھا، وہ جھومتا تھا. تو ایسا ہی پرستار ملا جیسا خدا کو چاہیے تھا. آمین. جیسا چاہیے تھا ایسا ہی ملا. کیونکہ خدا کس کو ڈھونڈتا ہے؟ پرستاروں کو. اور یہاں پر یہی ہے کہ میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا. کتنے لوگوں کا ایمان ہے کہ وہ اچھا پرستار تھا، وہ اچھا شاعر تھا، وہ اچھا موسیقار تھا، وہ اچھا گانے والا، اچھا مغنی تھا؟ تو خدا کہتا ہے وہ مجھے مل گیا. آمین. یہ دوسری بات ہے. پہلی بات کس کو ڈھونڈا خدا نے؟ گناہگاروں کو. دوسری بات کس کو وہ ڈھونڈتا ہے؟
और परस्तारों को क्यों ढूंढता है? ताकि ढूंढने की वजह, ताकि वो रूह और सच्चाई से खुदा की क्या करे? प्रस्तुत करे। ढूंढने की वजह यह है। और नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, खुदा जो है कोई ना कोई नेमत या बरकत देने के लिए भी ढूंढता है। यह तीसरा पॉइंट है। बरकत देने के लिए, नेमत देने के लिए ढूंढता है। और इसके लिए मेरे साथ आप निकाल सकते हैं सलातीन की पहली किताब 3 बाब 4 आयत से हम पढ़ेंगे। और भाई शराज, भाई हरून पढ़ने में मदद करेंगे। सलातीन की पहली किताब, उसका 3 बाब, उसकी 4 आयत। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और बादशाह ज़ेबाऊन को गया ताकि कुर्बानी करे, क्योंकि वो खास ऊंची जगह थी। बादशाह सुलेमान की बात है कि जबून के पहाड़ पर गया। और सुलेमान ने उस वक्त की बात है जब कोई हैकल नहीं थी। तो उस वक्त लोग, सुनिए भाई, उस वक्त लोग ऊंची जगहों पर कुर्बानियां किया करते थे, हैकल नहीं थी। तो ये जबून के पहाड़ पर गया है कुर्बानी करने के लिए। जी कैरी ऑन। और सुलेमान ने उस मजमा पर 1000 सोंपनी कुर्बानियां बजरानी। रुकिए, जबून के पहाड़ पर कितनी कुर्बानियां चढ़ाई हैं? काटते नहीं, ज्यादा है जी। ज़ेबून में खुदावंद रात के वक्त सुलेमान को ख्वाब में दिखाई दिया, और खुदा ने कहा, मांग मैं तुझे क्या दूं? थैंक यू जी। उसने सिर्फ 1000 कुर्बानी चढ़ाई है। रात को खुदा उसके पास आया है कि बता मैं तुझे क्या दूं? इसने सिर्फ क्या किया था? 1000 कुर्बानी, सोख्तनी कुर्बानी। और ये अगर पैसे की बात करें फिर भी ये कॉस्टली है। अगर आप फिगर की बात करें तो फिर भी 1000 बहुत तादाद है। क्या ख्याल है? खुदावंद को पसंद आया है इसकी कुर्बानी, और खुदा रात को उसके पास गया है। खुदा ने सुलेमान को ढूंढा, आ बता मैं तुझे क्या दूं? आमीन। तो पूरी कहानी से आप वाकिफ है कि उसने खुदा से क्या मांगा? हिकमत। कितने लोग जानते हैं कि रूल कुछ की नेमतों में से ये एक नेमत है, हिकमत? ज्यादा लोग जानते हैं। तो ये पॉइंट है कि खुदा बाज़ लोगों को नेमत देने के लिए भी क्या करता है? ढूंढता है। ना सिर्फ नेमत देने के लिए बल्कि नेमतें देने के लिए भी क्या करता है? ढूंढता है। खुदा बरकत देने के लिए क्या करता है? जब किसी की अदा खुदा को पसंद आती है, जब किसी का अंदाज खुदा की हजूरी में अच्छा लगता है, उस वक्त खुदा ढूंढता है ताकि उनको क्या करे? बरकत दे। क्या करे जी? मैं ना शराज के गली में जा रहा था, इनके घर की तरफ, तो पीछे से एक शख्स ने आवाज दी, सर जी सर जी सर जी। मैं रुक गया, मैंने पीछे देखा तो वो भी मेरा स्टूडेंट था। बड़ा अच्छा वो मौसीकार है, गाता है, शर्जील की बात, बड़ा अच्छा वो गाता है, मौसीकार है, बजाता है। मैं रुक गया, जी उस्ताद जी बस तेनू हदिया देना सी। तो उसने मुझे हदिया दिया, मैंने उसके लिए दुआ की गली में ही, और वो चला गया। तो मैं शराज को बताने लगा, मैं क्या हदिया वो ही जेड़ा पिछे चल के आए, तो जे पादरी चल के हदिये वाल जाए तो हदिया नहीं हो। समझा रही बात की? भाई खुदा चलकर सुलेमान के पास आया, बता मैं तुझे, मेरी बात को समझ रहे हैं? और भाई जितने भी आप लोग हैं, सिर्फ पादरी की बात नहीं है। अगर आप खुदा की हुजूरी में झुकने वाले
کیا صرف دعا پادری صاحب نہیں کرنی؟ اگر آپ جھکنے والے ہیں آپ کے سورسز اور وسائل آپ کے پاس چل کر آ جائیں گے. انہوں نے لتاں لگ جان گیا, ٹینشن نہ لو, تہاڈے سورسز اور وسائل نو شاباش پر لگ جان گے تہاڈے کول آن لئی, تے جے نہ چکو تو پھر تہاڈے کول دور جان لئی پر لگ جان گے. لکھا نا دولت پر لگا کے پڑھیا نہیں ہے والا سرفراز صاحب, اڑ جاتی ہے, اور جو جھکنے والے ہیں اڑ کر ان کے پاس آتی ہے. یاد رکھنا ہے. تو سلیمان کو خدا نے ڈھونڈا ہے کس کام کے لیے؟ نعمت دینے کے لیے, حکمت کی نعمت دینے کے لیے. آمین. برکت دینے کے لیے خدا ڈھونڈتا ہے. اور یہ کہانی اگر چھیڑی جائے تو لمبی ہو جائے گی, مجھے اس کی طرف نہیں جانا, مجھے اپنے موقف پر بات کرنا ہے. کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ چوتھا جو پوائنٹ ہے آج دے جننے بھی لوگ موجود نے, خدا پرست نے, خدا تو ڈرن والے نے, پرستار نے, یا ابھی چینج نہیں ہوئے, یہ بات سب کے لیے ہے. خدا مدد کرنے کے لیے ڈھونڈتا ہے. کس کام کے لیے؟ ہاتھ کھڑا کرو, ہاں کنوں کنوں مدد دی ضرورت ہے؟ مدد کرنے کے لیے ڈھونڈتا ہے. تو پھر تو ایزی ہو گیا, پھر تو اچھی بات ہے کہ وہ مدد کرنے کے لیے ڈھونڈتا ہے. موجاں لگ گئی نے. کیا خیال ہے؟ دنیا کے اندر لوگ ڈھونڈتے ہیں, شاباش, کوئی ہماری مدد کرے, اس کو ڈھونڈتے ہیں. مدد کرنے والوں کو ڈھونڈتے ہیں دنیا کے اندر. بھئی کسی حوالے سے بھی آپ کو مدد کی ضرورت ہے. کسی کو میتھ نہیں آتا وہ ڈھونڈے گا کوئی مجھے پڑھانے والا. کیا خیال ہے؟ کسی کو عبرانی نہیں آتی وہ ڈھونڈے گا کوئی مجھے گائیڈ کرنے والا. کسی کو راہ کی نہیں سمجھ کدھر جانا ہے, چوراہا ہے, تو ہر بندہ کیا ڈھونڈتا ہے؟ بولیے, مددگار ڈھونڈتا ہے. لیکن دیکھ یہاں پر مددگار ان کو ڈھونڈ رہا ہے جن کو مدد کی ضرورت ہے. اور نکالیے میرے ساتھ تواریخ کی دوسری کتاب 16واں باب, نامی آیت. ہارون بھائی بلند آواز سے پڑھیں گے. خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے, اور آسا کی سلطنت کے 39ویں برس. کہاں سے پڑھ رہے ہو؟ تواریخ کی دوسری کتاب ہے, 16واں باب, نامی آیت ہے. کیونکہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے. ایک منٹ, یہاں لکھا ہے خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر. یہاں رکنا ہے اپنے ایک منٹ کے لیے. خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں. زکریا کی کتاب اس کا 4 باب 10ویں آیت پہلے اس کے ساتھ اٹیچ کیجئے, پھر آگے چلیں. زکریا کی کتاب 4 باب 10ویں آیت. جی. کیونکہ کون ہے جس نے چھوٹی چیزوں کے دن کی تحقیر کی ہے, کیونکہ خداوند کی وہ 7 آنکھیں جو ساری زمین کی سیر کرتی ہیں. آمین. یہاں 2 باتیں آپ کو ملیں گی. ایک تو لکھا ہے خداوند کی 7 آنکھیں. کتنی؟ ادھر تھا پھرتی ہیں, یہاں لکھا ہے سیر کرتی ہیں. آمین. تو کس لیے پھرتی ہے؟ تلاش کے لیے, ڈھونڈنے کے لیے. آمین. کتنی آنکھیں لکھا ہے؟ اور مکاشفہ کی کتاب آپ پڑھے, وہاں پر خدا کی 7 روحیں بھی کہا گیا ان کو. اور 7 کا جو فگر ہے یہ کاملیت کا عدد ہے. اس کا مطلب ہے خدا کی جو نظر ہے وہ کیا ہے؟ کامل. بھئی میرے پیچھے کیا ہے؟ مجھے دکھائی نہیں دیتا. بولیے, میرے پیچھے کیا ہے؟ مجھے دکھائی نہیں دیتا. مجھے آپ دکھائی دے رہے ہیں. اگر میں پیچھے والے کو دیکھتا ہوں
तो वो तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप दिखाई, मेरे पैदा होने से पहले क्या कुछ था मुझे पता नहीं है, मेरे मरने के बाद क्या कुछ होगा, बोलिए, मुझे पता नहीं होगा, लेकिन 7 आंखों वाला देख रहा है, जान रहा है आसमान पर क्या हो रहा है, जमीन पर क्या हो रहा है, पाताल में क्या हो रहा है, 2000 में क्या हुआ, 2012 में क्या हुआ, आदम के दौर में क्या हुआ, क्योंकि उसकी 7 आंखें हैं जो कामल नजर की निशानदेही करती और उससे कुछ छुपा नहीं। भावे 7वीं कोठड़ी से जाके गुनाह कर लो, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं। आमीन। तो कितनी आंखें क्या करती है? नहीं, जकरिया के हवाले के मुताबिक सैर करती, तवारी के हवाले के मुताबिक क्या करती है? फिरती। शराफ जी कह रही हूं तवारी का हवाला, ताकि वो उनकी इमदाद में जिनका दिल उसकी तरफ काबिल है, उनकी इमदाद में जिनका दिल उसकी तरफ है, काबिल है, अपने सही कभी दिखाए। आमीन। सुनिए मुझे, थोड़ा जहां वालना लिखा गया है, सीधा इस तरह से है, खुदावंद की आंखें जमीन पर फिरती, सारी जमीन पर, ताकि उनकी मदद करें। सारी जमीन पर फिरती है ताकि खुदा उनकी जिनका, हाँ जी, जिनका दिल उसकी तरफ है, जिनका दिल कामल है, जिनका सारा ही दिल ओदे वाले। और एक काम करके तो खुदा अपने आप नू कवि साबित करे, कादर खुदा साबित करे, कुदरत वाला खुदा साबित करे। यहां लिखा अपने आप को कवि दिखाए। आमीन। खुदा ढूंढ रहे यहां पर, सारी जमीन पर आंखें क्या करती है? फिरती है, उनकी इमदाद के लिए फिरती है। आमीन। किसके लिए फिरती है? खुदावंद की आंखें ढूंढ रही हैं उनको जिनको मदद की क्या है? जरूरत है। तो कितने लोगों को मदद की जरूरत है? सिर्फ पैसे के हवाले नाल नहीं, शिफा के हवाले नाल किन्नियां नूं मदद की जरूरत है? उन्हां दी बिगड़ी हुई औलाद सुधर जाए, किन्नियां नूं मदद की जरूरत है? उनका अपना घर हो जिनका अपना घर नहीं, कितने लोगों को मदद की जरूरत है? ये हुकूमत ने भी कुछ ऐसे ऐलानात किए अपने घर के हवाले से, है ना, नेट पर। कोई पढ़े जे अजय देखो कि नहीं? अच्छा, कुछ ने पढ़े हैं, कुछ को नहीं पता किए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, तेरा खुदा यहां पर तुझे ढूंढ रहा है। जिस हवाले से भी तुझे मदद चाहिए, इसी हवाले से वो तेरी मदद कर सकता है। शिफा के हवाले से तुझे मदद चाहिए, वो शिफा के हवाले से तेरी मदद कर सकता है। और तुझे माली हवाले से मदद चाहिए, माली फुकदान है, माली कमी है, इस हवाले से भी वो तेरी मदद, बोलिए, कर सकता है। और किस किस हवाले से मदद कर सकता है? हर हवाले से। तो यहां पर वो ढूंढ रहा है लोगों को, क्या करने के लिए ढूंढ रहा है? मदद करने के लिए ढूंढ रहा है। आमीन। कितने पॉइंट हो गए हैं? 4। जी, एक और है जिस पर हम गौर करेंगे, और निकालें मेरे साथ पैदाइश की किताब, उसका 3 बाब 9वीं आयत। तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा, तू कहां?
थैंक यू जी। तो यहां पर खुदा ढूंढता है रिफाकत रखने के लिए। आमीन। किसके लिए? आदम और हवा हर रोज रिफाकत रखते थे। आदम और हवा हर रोज उसकी कुर्बत में थे और खुदा हर रोज वहां आता और आदम और हवा से क्या होती? रिफाकत होती। एक रोज ये रिफाकत नहीं हुई। खुदावंद आया है किस बात के लिए? रिफाकत रखने के लिए। हो सकता है आपको भी अपना बचपना याद हो। बचपन में जब हम छोटे होते हैं, कोई 5 साल के, 6 साल के, 4 साल के, तो बच्चों के साथ खेलते हैं। क्या ख्याल है? और अगर वो दोस्त उसका नहीं मिल रहा तो फिर वो उसको तलाश करते हैं, ढूंढते हैं। और ये बाइबल में भी ऐसा लिखा हुआ है कि बच्चे कहते हैं कि मैंने आपको ढूंढा और आप नहीं मिले। तो ये जो बचपन की बात मैं कर रहा हूं, मेरे अकेले की बात नहीं है, ये सबका ऐसा ही हाल है। बचपन में हम ढूंढते थे खेलने के लिए, अगर नहीं मिलते तो थोड़ा परेशान होते। क्या ख्याल है? यहां खुदा हर रोज रिफाकत करता था अपने लोगों से, और एक दिन रिफाकत नहीं हुई तो खुदा ने फिर आवाज दी है, आदम तू कहां है? खुदा आदम को ढूंढ रहा था किसके लिए? रिफाकत के लिए। आमीन। किसके लिए? और मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये ढूंढने का काम खत्म नहीं हो गया, ये जारी है। यीशु मसीह समान पर चले गए। समान पर जाने के बाद उसने साउल को ढूंढा, जिसका नाम बाद में पालूस रखा गया। समान पर जाने के बाद ढूंढा। आमीन। तो जरा इनको दोहराइए। पहला पॉइंट क्या था? खुदा गुनाहगारों को, अगर कोई इधर ऐसा शख्स बैठा हुआ है जिसने अभी तक खुदावंद को कबूल नहीं किया, तो उसकी वैल्यू और कदर यह है कि खुदा उसको ढूंढ रहा है। दूसरा क्या था? परस्तारों को ढूंढता है। और जो लोग अक्सर छुट्टी पर छुट्टी, वो याद करें कि खुदा उनकी प्रस्तुश को लेना चाहता है। आमीन। उनकी प्रस्तुश से लुत्फ अंदोज होता है और वो चाहता है कि परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तुश करे। तीसरा क्या था? कोई नेमत देने के लिए। कितने लोग कोई ना कोई नई नेमत चाहते हैं? शाबाश। तो देर किदे वालों है? वो तो देना चाहता है। आमीन। बरकत की बात करे तो भी देना चाहता है, नेमत की बात करे तो भी देना चाहता है। और कई लोग यहां तक रुक जाते हैं, बस पाक रूह का बपतिस्मा हो गया है, बस उन डिग्री ते संद मिल गई है। आगे भाई 9 नेमतें भी हैं, उनके लिए ये तड़प और भूख और प्यास रखो। इसके बाद मैंने क्या बोला था? है? मदद करने के लिए ढूंढता है। और मैंने पूछा सबको मदद की जरूरत है। और आखिरी बात क्या? रिफाकत के लिए। कितने लोग खुदा से रिफाकत करना चाहते हैं? कितने लोगों को रिफाकत का मजा आता है? मंगल से मंगल ही मजा आता है या आगे पीछे भी? अपने घरों में भी दुआ कीजिए और खुदा से रिफाकत कीजिए। आमीन। तो देखो उसके अंदर कितना पैशन है, कितना जज्बा है, कितना बोझ है कि वो हमें ढूंढता है। और जितनी बातें यहां पर हमने 4 या 5 सीखी हैं, इन बातों से कोई भी शख्स बाहर नहीं है। अगर कोई गुनाहगार है तो वो भी इन बातों के अंदर है, क्योंकि खुदा गुनाहगार को ढूंढ रहा है। अगर कोई परस्तार है वो भी इन बातों के अंदर है, क्योंकि खुदा परस्तार को ढूंढ रहा है। अगर किसी को नेमत चाहिए तो वो भी इन्हीं बातों के अंदर है, क्योंकि खुदा नेमत देना चाहता है और हमें नेमतों की क्या है? जरूरत है। और अगर कोई रिफाकत रखना चाहता है तो वो भी इन्हीं बातों के अंदर है, क्योंकि खुदा हम सब से क्या करना चाहता है?
हम ऐसे खुदा के शुक्रगुजार हैं जिसके अंदर बोझ है, जज्बा है, मोहब्बत है, वो हमें ढूंढता है। और कलाम में ये लिखा है कि खुदावंद को ढूंढो जब तक वो मिल सकता है। अगर किसी ने पढ़ा है तो आपको याद होगा, ये तवारीख की दूसरी किताब 15वें बाब में पहली 3 आयत में आपको मिल सकता है कि खुदावंद को ढूंढो जब तक मिल सकता है। आमीन। और जब उसको ढूंढेंगे तो वो क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। कलाम के सबब से खुदा हम सबको कसरत की बरकत